بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمتکم اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں المنتظر ٹی وی۔ میں آپ کا میزبان ہوں محمد ارشد عابدی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرمایا ہے، علم اصول الفقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ نفی کے بعد جب الا آ جاتا ہے تو حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ اس کا ترجمہ یوں بنے گا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انس کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ لیعبدونی، نون کے نیچے کسرہ ہے یا نسبتی گر چکی ہے وقف کی وجہ سے، کہ میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں، صرف اونلی میری عبادت کریں۔ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ میری عبادت کریں۔ تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، کہ اللہ کی معرفت ہے، لیعرفونی، میری معرفت حاصل کریں۔ جب تک معرفت نہیں ہوگی کیا ہوگا؟ عبادت نہیں ہو سکتی۔ کیسے؟ اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، العمل بغیر علم ضلال، عمل ہو، عبادت ہو، بغیر معرفت کے ہو، بغیر علم کے ہو، ضلال، وہ گمراہی ہے۔ وہ عبادت نہیں ہے، وہ گمراہی ہے۔ تو لہٰذا عبادت سے پہلے معرفت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کے مصداق نبی فرماتے ہیں، اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ، کہ سب سے پہلا علم ہی وہ ہے جس میں جبار کی معرفت ہو، وآخر العلم تفویض الامر الیہ، اور دوسرا علم وہ ہے کہ اپنی ضروریات کو، اپنے امور کو اللہ کی طرف سپرد کر دیا جائے، اللہ کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ تو میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ پہلا علم ہی وہی ہے، علم اسی کو کہنا چاہیے جس میں جبار کی معرفت ہو، ورنہ وہ علم کہلانے کا استحقاق نہیں رکھتا۔ وہ علم عالی ہو سکتا ہے، اصل علم نہیں ہو سکتا۔ اصل علم وہی کہلانے کا حق رکھتا ہے کہ جس میں معرفت جبار ہو۔ میرے نبی نے فرمایا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ وہ کون سا علم ہے؟ آئیڈیالوجی کا علم، بایولوجی کا علم ہے، فزکس کا ہے، کیمسٹری کا ہے، بایو کا ہے، انگلش کا ہے، کون سا علم ہے؟ یہ سارے علوم عالی ہیں۔ وہ علم جو اللہ کی معرفت کا عینہ دار ہو وہ علم کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ یقیناً وہ علم جس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، وہ علم یا قرآن کا علم ہے یا حدیث کا علم ہے۔ تو جیسے مدارک علم بھی چار ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور عقل۔ اجماع بھی وہی معتبر ہے جس میں حدیث ہو، اس پہ علماء کا اجماع ہو۔ عقل بھی وہی معتبر ہے کہ حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، جو عقل کا ہو، کیونکہ عقل یہدی الی الحق، عقل حق کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ تو یقیناً عقل بھی وہی معتبر ہے جو شرع کے مطابق ہو، ورنہ اکیلی عقل کافی نہیں ہے۔ البتہ احادیث میں عقل کو رسول باطنی کہا گیا ہے، پیغمبر باطنی کہا گیا ہے عقل کو، لیکن اکیلی عقل کافی نہیں ہے۔ اگر اکیلی عقل کافی ہوتی تو انسان کبھی آگ کے سامنے نہ جھکتا، کبھی سورج کو خدا نہ مانتا، کبھی پتھروں کے سامنے سر برسجود نہ ہوتا۔ عقل کافی نہیں ہے۔ عقل کے ساتھ ساتھ جو رسول باطنی ہے، رسول ظاہری کی بھی ضرورت ہے، اور ہر حال میں ضرورت ہے
जो हर हाल में मौजूद भी रही है। बहरहाल तो इल्म अल्लाह की मार्फत का ये बहुत ज़रूरी है। जब तक कि मार्फत नहीं होगी उस वक्त तक अमल नहीं कहला सकता बल्कि गुमराही हो। मैं मिसाल देता हूँ, फर्ज करें मैंने जाना है कसूर की तरफ और मैं रास्ता पूछता नहीं हूँ, मुझे रास्ते का इल्म नहीं है, मैं रास्ता पूछता नहीं हूँ, मैं अपनी गाड़ी निकाल लेता हूँ और मैं चल पड़ता हूँ इधर यादगार की तरफ और आगे फिर शाहदरा की तरफ आगे बढ़ जाता हूँ, सियालकोट की तरफ, तो मैं कसूर के करीब हूँगा या दूर हूँगा? दूर हूँगा ना यकीनन। क्यों? मैंने मार्फत हासिल नहीं की, मैंने अपना रास्ता पूछा नहीं है, मुझे रास्ते का पता ही नहीं है, रास्ते के बारे में बररसी नहीं की, जुस्तजू ही नहीं की, तो मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा बल्कि मंजिल से दूर होता चला जाऊंगा। इसलिए जब तक के मार्फत नहीं होगी, जब तक के इल्म नहीं होगा, हम सही माने में अल्लाह की मार्फत जब तक हासिल नहीं कर सकते उस वक्त तक क्या है, इबादत का हक अदा नहीं हो सकता। तो इबादत बदून मार्फत हो नहीं सकती। और इल्म के लिए, इल्म का दूसरा नाम बुरहान भी है, यकीन भी है, दलील भी है। और इस बुरहान की दो किस्में हैं, एक बुरहान लिम्मी होता है, एक बुरहान इन्नी होता है। क्या होता है? इसमें से एक की डेफिनेशन ये है कि क्या है कि दलील को जो है देखना उसके खुद मुसब्बिब से, मैं आसान कर देता हूं, इसको और आसान कर देता हूं। मसलन एक जगह पे दूर से आग जल रही है, तो आपने दूर से देखा, धुएं को, आग को नहीं देखा, आपने फौरी कह दिया वहां पे आग जल रही है, हालांकि आपने आग को नहीं देखा बल्कि धुएं को देखा। तो धुआं जो मालूल है, मालूल को देखकर इल्लत तक पहुंचना, ये दलील का अदना दर्जा है। और क्या है? इल्लत को देखकर इल्लत तक पहुंचना, सबब को देखकर सबब तक, मुसब्बिब तक पहुंचना, ये क्या है? सबब को देखकर मुसब्बिब तक पहुंचना, ये दलील का अदना दर्जा है। और खुद मुसब्बिब को देखकर मुसब्बिब तक पहुंचना, इल्लत को देखकर इल्लत तक पहुंचना, ये दलील का आला दर्जा है। तो इसलिए मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अरफ्तो रब्बी बेरब्बी लौला रब्बी लमा अरफ्तो रब्बी बेरब्बी, मैंने अपने परवरदिगार को पहचाना, बेरब्बी अपने रब के जरिए, लौला रब्बी लमा अरफ्तो, अगर मेरा अल्लाह ना होता तो मैं अल्लाह को पहचान ना पाता। यानी मैंने अल्लाह को अल्लाह के जरिए पहचाना है, मखलूक के जरिए नहीं पहचाना। और हमारी दलील क्या है? हम मखलूक को देखते हैं। ये एक दरख्त कैसे पैदा हुआ? एक छोटे से बीज से इतना बड़ा दरख्त किसने बनाया? ये इतनी बड़ी आसमान जो छत है, इसको बगैर पिलर्स के स्तूनों को किसने ठहराया? ये 3 हिस्से पानी है, एक हिस्सा मट्टी है, जमीन है, इसको किसने ठहराया? तो यकीनन अल्लाह। हम क्या करते हैं? मखलूक को देखकर खालिक तक पहुंचते हैं, और जो अंबिया और आइम्मा है वो खालिक के जरिए खालिक तक पहुंचते हैं। ये हमारी मार्फत का भी फर्क है। हमारी मार्फत भी वो वाली मार्फत नहीं है जो आइम्मा की है। तो लिहाजा इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं, इलाही मा अर्रफना का हक्का मारिफतिक, जिनकी मार्फत का कमाल ये है कि दलील क्या, कि वो इल्लत को इल्लत के जरिए पहचानते हैं, मालूल के जरिए इल्लत तक नहीं पहुंचते। तो वो फरमा रहे हैं, वो सैयदुल अंबिया फरमा रहे हैं, जिनका इल्म सबसे ज्यादा है, जो इल्म का मरकज है, इल्म का सरचश्मा है, इल्म का मंबा है, वो फरमा रहे हैं, इलाही मा अर्रफना का हक्का मारिफतिक, आए अल्लाह जो तेरी मार्फत का हक था वो मोहम्मद अरबी से भी अदा ना हो सका। हद हो गई है, कमाल हो गया कि जो सैयदुल अंबिया है, सैयदुल रसूल है, वो फरमा रहे हैं, इलाही मा अर्रफना का हक्का मारिफतिक, या अल्लाह तेरी मार्फत का हक मोहम्मद अरबी से अदा ना हो सका। उलमा फरमाते हैं, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है अल्लाह की ज़ात मुताल, अल्लाह की ज़ात मुताल की जो मार्फत है वो ऐसा बहरे अमीक है, ऐसा बहरे बेकरां है, जिसमें कोई गोता लगाए तो वो गर्क तो हो सकता है, वापस नहीं आ सकता। हाँ, अल्लाह की ज़ात की मार्फत हत्ता मोहम्मद के पास भी नहीं है, ज़ात मोहम्मद भी नहीं, ज़ात
बारी को जानते। हाँ, अल्लाह की सिफात की मार्फत रखते हैं, अल्लाह के अफ़आल की मार्फत रखते हैं, अल्लाह की इबादत के लिहाज से मार्फत रखते हैं। अल्लाह की जो कुन है, अल्लाह की जो माहियत है, अल्लाह की जो रियलिटी है, उसके बारे में भी अल्लाह नेम है, अल्लाह इस्म है, अल्लाह के पीछे जो मिस्दाक है, मुसम्मा है, वो मुसम्मा क्या है, कैसा है, वो ज़ात किस तरह की है, उसको ज़ात मोहम्मद भी नहीं जानते। इससे मुराद उलमा फरमाते हैं यही मुराद है, इलाही मारफना का हक़ मारिफतिक, तेरी मार्फत का हक मोहम्मद से अदा नहीं हुआ, यानी तेरी ज़ात का पता नहीं है, तेरी ज़ात किस तरह की है। बल्कि फरमाते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम गालिबन पीर के दिन की दुआ में, वल उकूलो अनकुन है मारिफतिही कल्लतिल अलसुनु अन गायत सिफतिही वल उकूलो अनकुन है मारिफतिही, तमाम ज़बानें आजिज़ हैं कि अल्लाह की सिफात का बयान करने का जो हक है वो अदा कर सकें। वल उकूलो अनकुन है मारिफतिही, काफ नून और एक आंख वाला हा, तो यानी कुन कहते हैं रियलिटी को, हकीकत को, माहियत को, हकीकत को। अल्लाह की अक्ल की जमा अकूल, उकूल के ऊपर अलिफ लाम इस्तिगराक लगा हुआ है। तमाम अक्लें मिल भी जाएं, अल्लाह की कुन जो है, अल्लाह की रियलिटी को दर्क करने से कासिर हैं। अल्लाह की ज़ात को नहीं पहचान सकती कि अल्लाह की ज़ात किस तरह की है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है। अल्लाह एक ऐसी हस्ती है, एक ज़ात है जो हमारे क्या है अज़हान से बुलंद है, अल्लाह को देखा नहीं जाता, क्योंकि क्या है ये हमारे हवासे खमसा ये कीबोर्ड का काम देते हैं, ये दिमाग तक बात पहुंचाते हैं, अल्लाह को हाथ से टच नहीं कर सकते, जिस्म ही नहीं रखता, जिस्म जिस्मानियत से बुलंद है, आंखों से देख नहीं सकते, लन तरानी मूसा, आंखों से नहीं देख सकते, हाथों से टच नहीं कर सकते। हाँ, तो बाकी जो हवा से खमसा है उनके जरिए भी दर्क नहीं कर सकते, तो लिहाजा हवा से खमसा के जरिए तो अल्लाह को दर्क नहीं किया जा सकता। तो फिर अल्लाह की मारिफत तो उसकी सिफात के साथ, उसके अफ़ाल के साथ, उसकी इबादत के जरिए करेंगे, लेकिन उसकी ज़ात किस तरह की है, कैसी है, किसी को भी पता नहीं है। इसलिए इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने जितनी इंसान को मार्फत की जरूरत थी उससे मुतले फरमा दिया और अपनी ज़ात की हकीकत के बारे में नहीं बतलाया, इत्तला नहीं दी। तो जितनी मार्फत जरूरी थी, जितनी इंसानी अक्ल के अंदर इदराक था, उतनी मार्फत करवा दी, और हकीकत ज़ात के बारे में, माहियत ज़ात के बारे में, रियलिटी के बारे में कोई भी नहीं जानता, ना अल्लाह ने बताया है कि वो ज़ात किस तरह की है। वो एक ऐसी ज़ात है, आप अपने ज़हन को समझाने के लिए इतना एक खाका बना सकते हैं। वो अल्लाह एक ऐसी ज़ात है, एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी रियलिटी है कि जो इल्म का मरकज़ है, जो कुदरत का मरकज़ है, जो हयात का मरकज़ है। इसलिए इल्म कलाम वाले फरमाते हैं कि अल्लाह के लिए बुनियादी 3 सिफात हैं, इल्म, कुदरत और हयात। तो फिर जब इल्म कलाम में बहस करते हैं कश्फुल मुराद में, जो इज्तिहाद की किताब है अक़ीदत के लिहाज से, इल्म कलाम के लिहाज से, वो कहते हैं जब इल्म आ जाता है, अल्लाह आलिम है तो कादिर की जरूरत ही नहीं है। क्यों? चूंकि जो आलिम होता है उसके पास कुदरत भी होती है, जो इल्म रखता है उसके पास कुदरत भी है, पावर भी है, उसके लिए अलहदा कादिर होने की जरूरत ही नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह की बुनियादी सिफात क्या है? आलिम और हयात, हई है वो, उसी से हर किसी को इल्म मिला है, उसी से हर किसी को हयात मिली है। अल्लामहु शदीदुल क़ुवा को, हजरत मोहम्मद को जो तालीम मिली है वो भी शदीदुल क़ुवा से मिली है। शदीदुल क़ुवा से मुराद अल्लाह है। अल्लाह ने हजरत मोहम्मद की तालीम का बंदोबस्त खुद फरमाया है। खुद अल्लाह उस्ताद है ज़ात मोहम्मद का, इल्म अता करने वाला ज़ात मोहम्मद को अल्लाह है। तो लिहाजा ये बात तय हो गई, वाज़ेह हो गई कि अल्लाह की एक ऐसी ज़ात है जो जिसको दर्क नहीं किया जा सकता। कोई अल्लाह की ज़ात को पहचानने की कोशिश भी करे, दर्क करने की कोशिश भी करे, तो वो गुमराह तो हो सकता है, अल्लाह की ज़ात की हकीकत को दर्क नहीं कर सकता। हाँ, जितनी मार्फत है उतनी रखनी चाहिए, यानी मखलूक के ज़रिए खालिक तक पहुँचे, सिफात, उसकी सिफात को देखें, उस तक पहुँचे, उसके अफ़ाल को देखें, उस ज़ात तक पहुँचे, उसकी इबादत करें और उस तक पहुँचे। इसलिए कि अल्लाह को 4 लिहाज से यकता मानना है।
इबादत में यकता मानना है, ज़ात में यकता मानना है, सिफात में यकता मानना है, अफ़आल में यकता मानना है। यानी अल्लाह के कामों में कोई शरीक नहीं है, अल्लाह की सिफात में कोई शरीक नहीं है, अल्लाह की इबादत में कोई शरीक नहीं है, और अल्लाह के अफ़आल में। तो अब सूरत हाल ये है कि जब अल्लाह हर लिहाज से अहद है, यकता है, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ मोहम्मद कह दीजिए अल्लाह अहद है, यकता है। जब अल्लाह हर लिहाज से यकता है, हत्ता लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बेटा है, ना वो किसी का बेटा है, ना उसकी वलम यत्तखिज़ स्वाहिबतम वला वलदा, ना उसकी साहिबा है, बेगम साहिबा है, ना उसका कोई बेटा है, बल्कि वो अहद है, हर लिहाज से यकता है। अच्छा, एक अहम जो मसला है वो ये है कि हम फिर अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान हैं अल्लाह की परस्तिश करते हैं, ठीक है। तो एक मसला मैं वाज़े करना चाहता हूँ जो किताब तौहीद में है कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, वाज़े है। अब अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह इसमें उसका मुसम्मा, उसकी ज़ात है, उसका मिस्ताक है, उसकी रियलिटी है। तो क्या हम अल्लाह की नाम की इबादत करते हैं या उस मिस्ताक की इबादत करते हैं, या उस नाम की भी इबादत करते हैं और ज़ात की भी, दो चीज़ों की इबादत करते हैं? तो मासूम फरमाते हैं मन अबद अल इस्म दून अल माना फकद कफरा व मन अबद अल इस्म वल माना फकद शरका व मन अबद अल माना दून अल इस्म फकद अबदा। जिसने सिर्फ नाम खुदा की, लफ्ज अल्लाह की, नेम है अल्लाह, इस्म है अल्लाह, जिसने उस जात का नाम अल्लाह, सिर्फ नाम खुदा की, नाम अल्लाह की इबादत की, फकद कफरा, उसने कुफ्र किया, वो काफिर है। वमन अबदल इस्म वल माना, जिसने अल्लाह की जात की और नाम की, दोनों चीजों की इबादत की, नाम की भी जात की भी, फकद शारा का, उसने शिर्क किया, उसने दो चीजों की इबादत किया है, एक नाम की और नाम के पीछे जो मिस्दाक है, मुसम्मा है, दो चीजों की इबादत की, वो फकद शारा का, उसने शिर्क किया। वमन अबदल माना दूनल इस्म फकद अबदा, जिसने सिर्फ जात की इबादत की, दूनल इस्म, नाम की इबादत नहीं की, फकद आबादा, उसने सही इबादत की है। तो नाजरीन, बहुत इंपॉर्टेंट मसला ये है, मैंने काफी इंटरव्यूज भी लिए हैं, लोगों से पूछा भी है, तो अक्सर लोग इसमें दिक्कत नहीं करते। हमें कंसर्न है अल्लाह की जात से, लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, ये अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं, इनको, इन नामों के जरिए अल्लाह को मुखातब किया जाता है, पुकारा जाता है, अल्लाह से दुआ की जाती है। लिहाजा ये नाम है, ये नाम वसीला है, हमारा असल मकसद, असल हदफ, असल एम ऑफ लाइफ ज़ाते खुदा है। हमने ज़ाते खुदा की मार्फत हासिल करनी है, जितना हमारा फरीजा है, और ज़ाते खुदा को सिजदा करना है, ज़ाते खुदा की इबादत करनी है, नाम की नहीं करनी। नाम तो वसीला है उस ज़ात तक पहुंचाने का, नाम सबब है उस ज़ात तक ले जाने का। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह, असल में अल्लाह का नाम इलाह है, ला इलाहा मौजूदुन गैरुल्लाह, अल्लाह का गैर इलाह मौजूद ही नहीं है। तो बहरहाल, तो हमने सिर्फ ज़ाते अहदियत की इबादत करनी है, और ज़ात से मुराद अल्लाह की वो हस्ती है जिसको हमारे दिमाग समझने से कासिर है। हाँ, एक आपको समझाने के लिए, एक नक्शा बिठाने के लिए मैंने पहले भी इशारा किया है कि एक अपने ज़हन में कि अल्लाह नेम है, उसके पीछे जो मुसम्मा है, उसके पीछे जो मिस्ताक है, वो क्या है? वो एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी ज़ात है, ऐसी रियलिटी है जो जिस्मानियत से बुलंद है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको टच नहीं किया जा सकता, जो इल्म का मंबा है, जो कुदरत का मंबा है, जो हयात का मंबा है, ठीक है, जो हयात का मरकज है। उसने हयात किसी से नहीं ली, उसने इल्म किसी से नहीं लिया, उसने क्या है, कुदरत किसी से नहीं ली। तो लिहाजा उस ज़ात की इबादत करना मकसूद है, वो गायत है। तो अब देखें कितनी ज़रूरत है मार्फत की, कितनी ज़रूरी है मार्फत, कितना इल्म ज़रूरी है कि नहजुल बलागा का पहला खुतबा मौला अली फरमाते हैं, अव्वलुद्दीन मारिफतुहु कमालो मारिफा अत-तस्दीक़ु बिही, कमालुत तस्दीक़ बिही तौहीदुहु, कमालुत तौहीद ही अल-इखलासु लहु व कमालुल इखलास लहु नफ़युस सिफ़ात अन्हु। कितनी ज़रूरत है मारिफत की। मौला फरमाते हैं सबसे पहला दीन ही वो है जिसमें अल्लाह की मारिफत हो। रसूल फरमा रहे हैं अव्वलुल इल्म मारिफतुल जब्बार, पहला इल्म ही वो है जिसमें जब्बार की मारिफत हो। अली फरमा रहे हैं पहला दीन ही वो है जिसमें अल्लाह की मारिफत हो। अव्वलुद्दीन मारिफतुल जब्बार,
पहला दीन ही वो है जिसमें जब्बार की मार्फत हो। अव्वलुद्दीन, पहला दीन मारिफतुल जब्बार है, अल्लाह की मार्फत है। तो अव्वलुद्दीन मारिफत हो कमाल और मारफा अत-तस्दीक बिह। मार्फत का कमाल क्या है? अत-तस्दीक बिही, दिल से अल्लाह को मानना, दिल से उसकी तौहीद का इकरार करना, दिल से ना जबान से, दिल से तस्दीक करना, जबान से इकरार करना, दिल से तस्दीक करना। कमालु तस्दीक बिही तौहीदुहु, दिल की तस्दीक का कमाल यह है कि उसे यकता मानना। वाहदा युवाहिदु तौहीदन, उसे यकता मानना, अकेला मानना। व कमालु तौहीद ही अल इखलासु लहू, और तौहीद का कमाल यह है कि उसके लिए मुखलिस होकर अमल करना, उसी की खुशनुदी के लिए, सिर्फ जात खुदा की खुशनुदी के लिए अमल अंजाम देना। कमालुल इखलास लहू नफयुस सिफात अनहु, और इखलास का कमाल यह है कि नफयुस सिफात अनहु, अल्लाह की सिफात की, अल्लाह की जात से नफी कर देना। ये थोड़ा सा मसला समझने के लायक है, इसमें थोड़ी सी नाजरीन की दिक्कत तलब है कि देखें अल्लाह की सिफात से अल्लाह की नफी कर देना। अल्लाह की नफी कर देना क्या मतलब? यानी जितने भी अल्लाह की सिफात हैं वो अल्लाह का गैर है, यानी हर सिफत अल्लाह की ऐन ज़ात है, अल्लाह से जुदा नहीं है। जिस तरह अल्लाह की सिफात की दो किस्में हैं। सिफात, कुछ सिफात ऐसी हैं जिनका ताल्लुक ज़ात के साथ है, कुछ सिफात ऐसी हैं जिनका ताल्लुक अफ़आल के साथ है। मसलन ज़ात के साथ मैंने इशारा किया है, इल्म है, हयात है, कुदरत है, ठीक है, ये अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक है। और कुछ ऐसी सिफात हैं जिनका ताल्लुक अफ़आल के साथ है। मसलन इंसान को, इस आलम को पैदा किया, उसकी सिफत खालिक का इजहार हुआ। फिर इंसानों को पैदा किया, मखलूक को पैदा किया, तो उसकी सिफत खालिक का इजहार हुआ। फिर मखलूक को रिज़्क दिया तो उसके सिफत राज़िक का इजहार हुआ। फिर हयात बख्शी तो सिफत मुहयी का इजहार हुआ। फिर उसको मौत दी तो सिफत मुमीत का इजहार हुआ। तो यानी सिफात कुछ ऐसी हैं जिनका ताल्लुक ज़ात के साथ है, कुछ ऐसी सिफात हैं जिनका ताल्लुक अफ़आल के साथ है, वो अफ़आल से ताल्लुक रखती हैं। जब अल्लाह वो अफ़आल अंजाम देगा तो उनकी वो सिफात कश्फ होती जाएंगी, ज़ाहिर होती जाएंगी। तो अब अल्लाह की हर सिफत ऐन ज़ात है, अल्लाह की ज़ात से गैर नहीं है, ज़ैत बर ज़ात नहीं है। ये ऐसा नहीं है यानी कि अल्लाह और है, सिफत इल्म और है, हयात और है, इल्म और है, कुदरत और है, ऐसा नहीं है। जो अल्लाह है वही कादिर है, जो कादिर है वो अल्लाह है, जो आलिम है वही अल्लाह है, जो अल्लाह है वही आलिम है। यानी इल्म और कुदरत, हयात, ये अल्लाह से जुदा नहीं है। एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए भी अल्लाह से जुदा नहीं है। जो अल्लाह है वही कादिर भी है, जो अल्लाह है वही आलिम भी है, जो अल्लाह है वही हई भी है। ये सारी अल्लाह की सिफात ऐन ज़ात हैं, उससे अल्लाह से एक लम्हे के लिए भी जुदा और दूर नहीं है। तो अब ये क्या है? कमालुल इखलास लहू नफयुस सिफात अनहु, इखलास का कमाल यह है कि अल्लाह की जो सिफात हैं उनकी उससे नफी कर दी जाए। यानी क्या मतलब? कि हर सिफत अल्लाह की ऐन ज़ात है, ज़ैत बर ज़ात नहीं है, उस अल्लाह की ज़ात से जुदा नहीं है, अल्लाह की ज़ात से अलहदा सेपरेट नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, एक नौजवान बच्चा है, वो पढ़ रहा है, अभी मैट्रिक में है, उसने FSC की है, मेडिकल में MBBS कर लिया है, हाउस जॉब कर लिया है, तो अब क्या है, MO है, मेडिकल ऑफिसर है। तो अब वो मेडिकल ऑफिसर है, उसी बंदे का खुदा न खास्ता कुछ अरसे बाद एक्सीडेंट होता है, दिमाग में चोट आ जाती है, बंदा वही मौजूद है, वो सिफत डॉक्टरेट खत्म हो गई है, मेडिसन का कोर्स जो किया था, मेडिसन के नाम याद थे भूल गए हैं, दिमाग पे चोट लगी है, बंदा एक ही है, वो मौसूफ है, डॉक्टर है, उसकी सिफत डॉक्टरेट है। वो एक वक्त था, वो स्टूडेंट था, सिफत डॉक्टरेट उसके पास नहीं थी। एक वक्त आया दरमियान में, उसने MBBS किया, हाउस जॉब की, टर्म्स एंड कंडीशंस जो थे उसके पूरे किए, मेडिकल की प्रैक्टिस की, वो डॉक्टर था। तो दरमियान में एक ऐसा वक्त है कि सिफत डॉक्टरेट उसके साथ है। फिर बाद में उसका एक्सीडेंट हो गया, तो कुछ अरसे बाद बंदा मौजूद है, मौसूफ मौजूद है, उसकी सिफत डॉक्टरेट गायब हो गई।
تو کیا مطلب؟ یعنی بندہ موصوف موجود ہے، ابتدا میں بھی اس کی صفت غیب، انتہا میں بھی اس کی صفت غیب۔ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایک ایسا موصوف ہے کہ جب سے عالم ہے ہمیشہ سے عالم ہے، ہمیشہ عالم رہے گا، جب سے حی ہے ہمیشہ سے حی ہے اور ہمیشہ حی رہے گا، قادر ہے اور ہمیشہ قادر رہے گا۔ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ وہ ڈاکٹر پہلے ڈاکٹر نہیں تھا، درمیان میں ڈاکٹر تھا، اینڈ پہ آخر میں پھر ایک ٹینیور میں ڈاکٹر نہیں تھا۔ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے پاس پہلے علم معاذ اللہ نہیں تھا، قدرت نہیں تھی، حیات نہیں تھی، پھر آئی، پھر غائب ہو گئی۔ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ہر وقت حی بھی ہے، ہر وقت عالم بھی ہے، ہر وقت قادر بھی ہے، ہر صفت اس کی ذات کا عین جز ہے، اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔